साथ साथ विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार करना है। तो आओ आज तुम्हें स्वदेशी वस्तुओं के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। Hello everyone. Recently, our Honorable Prime Minister has given us a slogan, Be Vocal About Local, which means that we should not only use the products made locally, but should also speak about it, so that we can contribute to boost our economy. Today, we will share 5 tips which can be used to fulfill this idea. First, use Khadi fabric. I know to promote Khadi, our government has already done a lot. Still, people do not use Khadi just because it's a bit expensive and pallid. But this is the time and weather to use Khadi. During summers, Khadi is very good for skin. So if possible, please use Khadi. Buy locally made hobby equipments. Today, parents are well aware of their children regarding their co-curricular activity. Surprisingly, it also helps to promote local products. If your child takes part in any hobby like music or sports, then definitely he will buy either a harmonium, guitar, cricket bat or a hockey stick, as these all are prepared locally. So it may help us in both ways. It's my next point, upgrade smartphones. It has become a trend these days, though our cell phones are working well. Yet we change them every year with the latest model. And we all know that all good brands are foreign brands. So my suggestion is that please do not upgrade your phone this year. You may save a big amount and then you can use this amount for your daily expenses. It will help to boost our economy. Enjoy locally made food products. Most of the time when we go to the mall, we will never come back without a burger from McDonald's. During pandemic, we are in habit not to cook food at home. And nowadays, everyone has come to know how to cook tastier and healthier fast food at home. So if we buy a bread baked locally and can make it less oily and healthier at home. So in this way we can save our money, health as well as help to boost local companies. Use Indian beauty products. We always run after foreign branded beauty products. But if we have alternates, then we should try Indian beauty products. There are many brands like Patanjali, Vico, etc. who have launched these very good beauty products successfully. At the end, I would like to request to initiate in this way. And please use Indian products and guide others too. In our opinion, ये अच्छा है. अरे क्या तुम्हें पता है हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी मीटिंग करने कहाँ गए थे और वहाँ क्या हुआ था? नहीं दीदी, नहीं पता, आप ही बता दो। चलो मैं तुम्हें एक नाटक दिखाती हूँ जिसके माध्यम से तुम्हें यह पता चलेगा कि उस मीटिंग में क्या हुआ था और उन्होंने क्या किया था। तुम कैसे आए हो? सर, आज बच्चों को कॉलेज छोड़ेंगे। आज पीएम हाउस की गाड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल आज घर में पूजा थी, इसलिए देर हो गई। वह आपकी समस्या है, मेरी आपने की है। पीएम हाउस को क्यों खींचा? आपको मालूम है ना कि मैं किसी भी निजी कार्य के लिए पीएम हाउस की किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करता। फिर भी लेकिन कारण जो भी हो, आप इन्हें संभाल कर से भेजिए ड्राइवर। बाबूजी कुछ किताबें लेने थे, थोड़े से पैसे चाहिए थे। अभी मेरी तनख्वाह नहीं आई है, उसमें देरी हो जाएगी। जब आएगी तो मैं दे दूंगा। बापूजी उनकी बहुत जरूरत थी। तब तक आप किसी पुस्तकालय या अपने किसी मित्र के यहाँ पढ़ लें। अब आप लोग स्वयं बस पकड़ कर जाएं। लेकिन बापूजी अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, अगर हम बस में जाएंगे तो आपको शोभा देगा? देश के लिए सब एक समान है, चाहे वह प्रधानमंत्री के बच्चे हो या आम आदमी के। और एक बात और, आज देश में खाद्यान्न संकट चल रहा है, तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वह हफ्ते में एक दिन का उपवास रखें, जिसमें अन्न का दबाव कुछ कम हो। और इसकी शुरुआत मैं अपने घर से करना चाहता हूँ, तो आज से हफ्ते में एक दिन पूरा घर उपवास रखेगा। जी बापूजी। आज देश जिन कठिन परीक्षाओं से गुजर रहा है, अब सब इस हालत से परिचित हैं। हमें आपकी वीरता पर गर्व है और पूरा विश्वास है कि हम इस युद्ध में विजय बन करेंगे। सरहद पे तैनात है हर पल भारत माँ के लाल, देशभक्त वीरों से भरी है भारत माँ की झोली। हंसते हंसते खाते हैं फौजी अपने सीने पे गोली।
आकाशवाणी है। अब आप राजेश जौहरी से समाचार सुनिए। झम्बू चौकी पर जोरदार लड़ाई चल रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से लैस सेना को अपनी वीरता और बहादुरी से जबरदस्त टक्कर दी है। इस हमले से बने हालात पर प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, उनके सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस थे, लेकिन हमारे सैनिकों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। भारत माता की जय! भारत माता की ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। युद्ध में शानदार विजय हासिल करने के बाद शास्त्री जी शांति के समझौते के लिए ताशकंद रवाना हुए। उसका अंजाम भी यकीनन बुरा होता है। हम भारत से हमेशा अच्छे रिश्ते चाहते हैं और जो युद्ध के कारण मनमुटाव हुआ है उसे दफन कर एक नए रिश्ते की भावना चाहते हैं। थैंक यू। भारत की जीत की महान गाथा अहिंसा के रास्ते पर लिखी गई है। इसकी नींव भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने रखी है। तो आइए सबसे पहले हम उनके जीवन काल के कुछ क्षणों को याद करें। अरे क्या इसमें तो नमक ही नहीं है। शायद मुझे मुर्गा भूल गई होगी। अरे ओ मम्मी, सुनती हो? जरा नमक मिला दो। अरे बिटवा, काहे चिल्ला रही हो? बापूजी, खाने में तो नमक ही नहीं है। अरे बिटवा, नमक कितना लगते बढ़ता ही जाते। अब तुम्हें ऐसा ही खाना पड़ेगा। लेकिन क्यों बापूजी? अरे इन अंग्रेजों ने तो नमक पर कर लगा दिया, कर। बापूजी, कर क्या होता है? वो तो तुम जानते हो, सरटैक्स। बापूजी को सही टैक्स होता है। हाँ, वही टैक्स। इन अंग्रेजों का बस चले तो ये हवा में भी टैक्स लगाते। अब हम क्या है बापूजी? बापूजी है ना, चलो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बापूजी, अब तो इन अंग्रेजों ने तो नमक पर भी कर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे? घबराओ मत, सरकार को खत लिखेंगे। अगर ना माने तो आंदोलन करेंगे, अपना नमक बनाएंगे। फिर भी ना माने तो अनशन करेंगे। जिंदाबाद बापूजी, जिंदाबाद बापूजी, जिंदाबाद गांधी जी, जिंदाबाद महात्मा गांधी जी, जिंदाबाद महात्मा गांधी जी, जिंदाबाद। आदमी को नमक चाहिए, कैसे जी? जैसे हवा और पानी। यह नमक हमारे समंदर का है, हर हिंदुस्तानी पर इस पर अधिकार है। और चलो हम अपना ही निर्णय। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। योर एक्सलेंसी, वह सब जगह नंबर बना रहे हैं सर। सर, बीच बाजार हमारा मजाक उड़ रहा है और सारी दुनिया में भी। सर, क्या लंदन से कोई हुक्म नहीं आया? सरकार चाहती है ये सब खत्म हो, परवाह नहीं। सबको कैद करना पड़े पर खत्म करो। गांधी को छोड़कर जितने हैं सबको गिरफ्तार कर लो। अब तक 90,000 से 1 लाख तक गिरफ्तार किया, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी तरफ से क्या कोई वायलेंस हुई? नो सर। अगर गांधी को अरेस्ट कर ले तो यह मुमकिन है। सर, उनकी तरफ से एक खत आया है। खत का जवाब शुक्रिया लिखकर भेज दो।
एक अकेला आदमी बांस की लाठी का सहारा लेकर ब्रिटिश एम्पायर की नाक में दम कर रहा है और इंग्लैंड के बच्चे उन पर लेख लिख रहे हैं। वो लोग चाहते क्या हैं? लगान में छूट, अपनी मर्जी की फसल उगाना और कमीशन में कुछ हिंदुस्तानी भी हो। दिया। लेकिन सर यह साइन हमें बहुत महंगा पड़ेगा। डोंट वरी, ये मत सोचो कि हमने क्या पाया है, ये सोचो कि हमको क्या पाना है। हम आज भी अहिंसा के विरोध में हैं, पर जब बात आती है हमारे देश की सुरक्षा की, तो हम देश की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। हम पड़ोसी देश से हमेशा अच्छे संबंध चाहते हैं। उन पर कब्जा करना हमारी नियति नहीं है। इसीलिए हम विजय प्राप्त करने के बाद भी समझौता करने के लिए तैयार हैं। हम शांति और न्याय के साथ हैं। हम रहे ना रहे, हमारा झंडा ऊंचा रहना चाहिए। ये नाटक तो बहुत ही ज्ञानवर्धक था। दीदी, ताशकंद समझौते के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। इस नाटक के माध्यम से हमें यह भी पता चल गया। अरे ये इतना सारा कूड़ा कचरा कहाँ से आ गया? कुछ बच्चे म्यूजियम देखने आए थे, देखो कितना कूड़ा फैला कर चले गए हैं। दीदी, अब हम क्या करेंगे? अरे ये मुझे हम क्या नहीं करेंगे, अब हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे। तो चले स्वच्छता अभियान की ओर।